Assalamu alaikum everyone, and the reason why I'm making this video today is because there are two things that I have learned and realized which I wanted to share with you guys. Number one is that no matter how much name, how much money, how much power, how much fame, or how much game we have in this world, we are all still helpless. We are all still helpless and we are powerless. If there is anyone, then it is surely and solely Him. It is Allah Ta'ala who has control, who has the authority, who has the knowledge, the ability and power over everything. This is my Iman. एंड आई एम श्योर आप सबका भी इसी बात पे यकीन होगा कि इस मुश्किल की घड़ी से, इस मुसीबत से अगर हमें कोई भी निकाल सकता है तो वो अल्लाह ताला के साथ है. सो बेसिकली द लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस रियलाइजेशन नंबर वन इज दैट इफ नॉट टाइम्स लाइक दीज, इफ नॉट अ सिचुएशन लाइक दिस, then I don't know what will make us realize and learn to not do takabbur. To not do takabbur, to not think of ourselves as anything better than anybody else around us, or to not think of anybody as anything less than ourselves. So this was finding number one, realization number one. Now for part two, because मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था to self-reflect, तो जो एक चीज़ मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड की है वो ये है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारे अंदर ही इतना सब कुछ है टू लर्न, टू हील, टू कंट्रोल, टू लुक एट, कि जो आउटर वर्ल्ड है ना वो तो सेकेंडरी हो जाता है. एंड द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज व्हेन द वर्ल्ड वाज फंक्शनल एंड व्हेन एवरीथिंग वाज नॉर्मल, आई एम श्योर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे that we would wake up with this feeling of wanting to make ourselves better than what we were yesterday, wanting to deliver better than what we had delivered yesterday, wanting to do something better than what we had done yesterday. हमारी खुद से ही प्री एक्सपेक्टेशंस होती थी और दुनिया की हमसे. रोज़ हम उठेंगे to prepare ourselves to be a part of this competition. We would wake up with this feeling of immense stress and anxiety because we would know that now we have to put ourselves outside in the world, as I said before, to be a part of work competition, social competition, family competition, friends, or just in general to do things that are expected of us or that we think are going to make us a better fit, you know. तो उन सारी चीज़ों में हम लोग इतना बिजी हो गए थे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं था, खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद के अंदर झांकने का. और कम से कम अब जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और जब मैंने अपने अंदर इतना सब कुछ जानने, पहचानने और तलाश करने की कोशिश की है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इतना सब कुछ आपके अंदर ही है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो. एंड जब तक your inner world is not going to be okay and is not going to be 100% perfect, you cannot be equipped enough to project yourself in the outer world or to be able to carry out the responsibilities that you have for the outer world. I hope I made sense. And by no means this is not supposed to be a professional video. Randomly मैं जलेबी बनाना सिखा रही थी वीडियो पे फॉर माई चैनल, यूट्यूब चैनल. ब्लॉग बना रही थी तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने वो वीडियो बना लिया तो मैं ये बात भी शेयर कर लेती हूँ सबके साथ. एंड आई होप किसी को कुछ लर्न हो इस चीज़ से, कुछ समझ में आए. बस समरी इस सारी बात की सिर्फ ये कि नाउ दैट वी हैव बिन फेस्ड विद this horrible time that we never thought would come upon us, and पूरी दुनिया जो इस वक्त है ना वो ऐसे हो गई है. while the entire world's at halt and pause, we are all literally like this. And like this, what I mean is हम सब लोग equal हो गए हैं. तो वो जो हमारे यहाँ एक
हमारी सोसाइटी में क्लासेस बनी हुई थी ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये बदतर है, ये कमतर है, जो इंतहाई शर्मिंदगी वाले कॉन्सेप्ट्स थे, शर्मनाक कॉन्सेप्ट्स, वो सारे मेरे ख्याल से इस वक्त लोगों को रियलाइज हो जाना चाहिए कि वो सब जो है यूजलेस है। एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर किसी के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, कोई किसी से कितने भी ज़्यादा पैसे वाला क्यों ना हो, ज़्यादा फेमस क्यों ना हो, ज़्यादा अथॉरिटी में क्यों ना हो, जब कुछ ऐसा हिट होता है ना, तो हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सब फिर एक जगह आके खड़े हो जाते हैं, और सारी चीज़ें रहती किसके कंट्रोल में? अल्लाह ताला की ज़ात में। सो at the end of the day, even what our religion teaches us is to not look at each other in a way कि ये मुझसे कम है या मैं इससे बेहतर हूँ, हम सब इक्वल हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइम में जो सबसे बेहतरीन मेरे लिए फाइंडिंग थी, एक तो वो ये थी कि हम सब इक्वल हैं, और कोई मेरे नहीं ख्याल से कोई किसी ज़्यादा इख्तियार रखता है किसी चीज़ पे या पावर रखता है, और दूसरी ये कि अंदर से अंदर का ख्याल पहले रखो, अपने इनर सेल्फ का, और जब वहाँ पे सब कुछ सही होगा ना, तो आप वैसे ही केपेबल होगे बाहर की जंगें लड़ने के लिए।